Good morning, students. In this lecture, we will do exercise 9.2 with topic bar graph. Bar graph, what is bar graph? Bar graph is used to represent the information by using of rectangle. Each bar is a rectangle in which length of a bar represent the frequency. The visual representation is called bar graph or bar diagram. Usually bar graph is made on a graph paper, but you can also make in this bar in your notebook. This is a rectangle. Each rectangle show the frequency. For example, रीडिंग स्टोरी बुक्स कितने स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं? 30 स्टूडेंट. सेम प्लेइंग बुक्स कितने स्टूडेंट रीड कर रहे हैं? 45. देन वॉचिंग एक्टिविटी कितने बच्चे कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कर रहे हैं 35. सिमिलर each bar show the frequency of information. How can we make bar graph? Bar graph is made on a graph with two dark line. It can be made horizontal or vertical lines. The bar graph is show with the length is merely for attraction. The distance between any two consecutive bar should be equal. कि जब भी हम कोई टू बार ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, ईच रेक्टेंगल देयर लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस और विड्थ between each rectangle must be same. You can use the scale for made the bar graph. Now we are starting our exercise 9.2. The marks obtained by a student in the various subjects are given below. Subject: in English 70 marks, Hindi 75, Maths 80 and Science 95, Social Studies 60. Draw a bar graph to represent the marks obtained. You can make this bar graph in graph paper or also in your notebook. So मैंने बार ग्राफ ये नोटबुक पर बनाया है, तो आप अपनी इसको ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ लाइन, देन with scale you have to measure equal. For example, 1 centimeter, 1 centimeter, then 1 to 2, then 3, 4, 5, 6. Each rectangle must be of equal width. Now inner data 70, 75, 80, 95 and 60, this type of information. So we can take the data of each unit 10. You start unit from 10. So I started from 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. One unit represent 10 marks. एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 मार्क्स को. मीन्स 10 और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 का, देन 10 का, देन 10 का. ईच यूनिट के बीच में 10 का डिस्टेंस है. और सो डिस्टेंस बिटवीन ईच यूनिट मस्ट बी सेम और इक्वल. नाउ इंग्लिश में कितने मार्क्स है? इंग्लिश 70 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने इस फर्स्ट वाले बार को 70 तक शो किया है. मींस इंग्लिश कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 70 को. देन हिंदी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 75 को. 80 और 70 के बीच में क्या है? 75. देन मैथ कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 80 को. देन साइंस कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 95 को. 90 और 100 के बीच का, that is 95. now social science कितने को, social studies कितने को शो कर रहा है? 60 को. that is the bar graph. नीचे x एक्सिस पर मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट्स को शो कर दिया, और y एक्सिस पर क्या शो कर दिया? मार्क्स obtained. this is the bar graph. you can also make this bar graph on your graph paper, and this is the you can fill the shade that you wish, that you willing to do. Now question number 2. The year wise growth of a school is show as below. हमें ग्रोथ दे रखे ईयर वाइज स्कूल की, कि ईयर 2002 to 2003 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 110. देन 3 to 4 में कितने थे? 170. देन 4 से 5 में 185. 5 to 6 में 245. देन 6 to 7 में 360. 7 to 8 में 540. अब हम इसी इंफॉर्मेशन को कहाँ शो करेंगे? बार ग्राफ पर. सो दिस इज द एक्स एक्सिस,
and this is the y axis. This is the y axis and this is the x axis. x axis पर क्या शो करेंगे हम years and y axis पर क्या शो करेंगे numbers of student. So इक्वल डिस्टेंस पर हम ईच रेक्टेंगल को या ईच बार को ड्रॉ करेंगे. सो 2002-13 में कितने स्टूडेंट थे? 110. तो मैंने 100, 200, 300 मैंने 1 यूनिट कितने का ले लिया? 100 स्टूडेंट्स का. आप 50 का भी ले सकते हो, 50, 100, 150, बट मैंने कितने का लिया? 100, 200, 300, 4, 5 and 6 and so on. तो 2002 to 3 showing 110 स्टूडेंट. तो 100 और 200 के बीच में 110 कहाँ आ रहा है? 100 से थोड़ा ऊपर. देन 3 to 4 में 170 कहाँ आ रहा है? 200 से थोड़ा सा नीचे. देन 4 से 5 पे 185 कहाँ आ रहा है? 170 से थोड़ा ऊपर बट 200 से थोड़ा नीचे. Similar, you can make the whole bar graph in question number 2. Now question number 3. Literacy rate of the various states of India in a particular year is given below. हमें लिटरेसी रेट दे रखी है स्टेट वाइज. मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट पर 1000 पर कितनी थी? 600. बिहार के 650, मिजोरम की 810, उत्तर प्रदेश की 700, केरला की 990. तो हम देख सकते हैं हमारा डेटा 600, 700, 800, 900 पे जा रहा है. तो हम 100 से ले ले यूनिट, 100, 200, 300. तो in question 3rd, this is the x axis and this is the y axis. x axis पर हमने क्या शो किए? स्टेट. एंड y axis पर क्या शो करे? हमने लिटरेसी रेट पर 1000. फर्स्ट मध्य प्रदेश की कितनी थी हमारी? 600 थी. तो 600 तक में ड्रॉ कर दिया हमने फर्स्ट रेक्टेंगल को. देन बिहार की कितनी थी? बिहार की थी हमारी 650. तो 650 को ड्रॉ कर दिया. देन मिजोरम की थी 810. तो 800 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो 810 तक शो कर सके. देन उत्तर प्रदेश की थी 700. तो एग्जैक्ट 700 के सामने तक ड्रॉ किया. देन केरला की थी 990. तो 1000 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे तक ड्रॉ किया. और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग शेड फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं. दैट इज द बार ग्राफ एंड दैट इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.2. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A random survey was done on the difficulty level of competitive examination. 100 candidates were asked to choose one of the following response: difficult, average, easy, and no comments. हमें 100 बच्चों को रिस्पॉन्स देने को कहा गया, 100 स्टूडेंट्स को. तो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स क्या रहे? डिफिकल्ट रहे 30 स्टूडेंट्स के, एवरेज रिस्पॉन्स रहा 25 का, इजी 40 का एंड कमेंट नो कमेंट 5 का. तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हो रहा है डेटा? 5 पे. और लास्ट लार्जेस्ट नंबर क्या है? 40. तो हम 5 की सीरीज में ले ले डेटा को. सो इन फोर्थ क्वेश्चन, एट x axis we will show response and at y axis we will show number of student and 1 unit represent 5 student. 1 unit means each distance in each unit कितने का? यहाँ पे 5 means 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. so 5 से लिया मैंने. लार्जेस्ट नंबर 40 था, तो हम 40 या 50 तक कहीं भी ले सकते हैं. सो फर्स्ट बार और फर्स्ट रेक्टेंगल कितने को शो कर रहे हैं? हमारा डिफिकल्ट 30 को. तो डिफिकल्ट को हम 30 तक शो करेंगे. देन एवरेज 25 को शो कर रहे हैं, तो मैंने 25 तक ड्रॉ किया. देन इजी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 को, 40 तक ड्रॉ करेंगे. देन नो कमेंट कितने को शो कर रहा है? 5 स्टूडेंट्स को, तो 5 स्टूडेंट्स तक ड्रॉ करेंगे. इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए. दैट इज बार ग्राफ एक्सरसाइज 9.2. थैंक यू.